سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئی سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما میں آج کے موضوعات اس طرح ہیں۔ عالمی دباؤ کا پاکستان پر اثر، حافظ سعید کو 10 سال 6 ماہ کی قید، جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم، بھارت اور چین کے درمیان ایک مرتبہ پھر ہوگی بات چیت، ہانگ کانگ کے مسئلے پر امریکہ سمیت 5 ممالک کی تنقید سے چین چراغ پا، تبت سے متعلق امریکی ایوان میں تجویز کی گئی منظور، آسٹریلیائی فوجیوں کی جانب سے افغانی افراد کو غیر قانونی طریقے سے قتل کرنے کا انکشاف، اور جموں کشمیر میں فوجی کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان اور اس کے حمایتیوں نے بڑی کوشش کی کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام باہر آ جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ ٹیرر فنڈنگ پر نظر رکھنے والی تنظیم FATF پاکستان کے اقدامات سے مطمئن نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے معاملے میں پاکستان نے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے پاکستان اس مرتبہ بھی گرے لسٹ میں برقرار رہا۔ اب پاکستان کی یہ مجبوری ہے کہ اسے دہشت گردوں کے خلاف بادل نخواستہ ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کرنے ہوں گے۔ اس لیے اب پاکستان سے یہ خبر آئی ہے کہ ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں لاہور کی جیل میں بند دہشت گرد حافظ سعید کو 10 سال 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ حالانکہ بھارت کے اس مطلوبہ دہشت گرد کو پاکستان ہمیشہ کلین چٹ دیتا رہا ہے، لیکن اب حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ملک کے سبھی اخبارات نے حافظ سعید کو سزا سنائے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا میں شائع خبر کے مطابق پاکستان کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ممنوعہ تنظیم جماعت الدعوہ کے سرغنہ اور ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو 10 سال 6 ماہ کی سزا سنائی ہے۔ اس سے پہلے حافظ سعید کے قریبی اور جماعت الدعوہ کے ترجمان یحییٰ مجاہد کو عدالت نے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں ہی 32 سال کی سزا سنائی تھی۔ مجاہد کے ساتھ دہشت گرد تنظیم کے 2 اور لیڈروں کو بھی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ فروری میں لاہور میں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اقتصادی مدد پہنچانے کے معاملے میں حافظ سعید کو 11 سال کی سزا سنائی تھی۔ ممبئی میں 2008 میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں حافظ سعید ہندوستان کو مطلوب ہے۔ اس حملے میں 10 دہشت گردوں نے 166 معصوم افراد کی جان لی تھی، وہیں سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ پہلے ہی حافظ سعید کو عالمی دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت کے ایک افسر نے بتایا کہ جمعرات کو لاہور کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید سمیت دہشت گرد تنظیم کے کچھ لیڈروں کو بھی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے سعید کے معاونین ظفر اقبال اور یحییٰ عزیز کو بھی 10 سال 6 ماہ کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ ان کے علاوہ عبد الرحمان مکی کو بھی 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی۔ تنظیم کے ان لیڈروں کے خلاف کئی معاملے درج ہیں، جن میں سے 24 معاملوں پر فیصلہ آ چکا ہے، جبکہ بچے ہوئے کیس پر سماعت ہونی باقی ہے۔ حافظ سعید کے خلاف اب تک 4 معاملوں میں فیصلہ آ گیا ہے۔ لداخ میں LAC پر بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کے دوران ایک اور دور کی بات چیت ہوگی۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا میں شائع خبر کے مطابق جمعرات کے روز وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں فریق جلدی بات چیت کا نیا دور شروع کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ اس ممکنہ بات چیت میں امن کی بحالی اور فوجیوں کی واپسی پر گفت و شنید کا امکان ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت کا مقصد مکمل طور پر فوجیوں کی واپسی اور خطے میں امن کی بحالی کو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ سمیت 5 ممالک آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ نے ہانگ کانگ کے مسئلے پر چین کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو تلف نہیں کر سکتا۔ ہندوستان ٹائمز میں شائع خبر کے مطابق ہانگ کانگ کے مسئلے پر امریکہ سمیت 5 ممالک کے ذریعے چین کو ہدف تنقید بنائے جانے سے چینی حکومت کی بے چینی بڑھ گئی ہے۔
اور बौखलाहट में उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सख्त अंजाम भुगतने की धमकी दी है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका की क़यादत में 5 ममालिक के ग्रुप ने चीन से कहा है कि वो हांगकांग के अवाम को अपना रहनुमा चुनने के हक से महरूम नहीं कर सकता और न ही उनके हुकूक में कोई कमी कर सकता है। इन 5 ममालिक से ग्रुप ने अपने एक मुश्तरका बयान में हांगकांग के मुंतखबा रहनुमा को नाअहल करार देने की चीन की कोशिश पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया। हांगकांग में भी चीन के इस कदम के खिलाफ सख्त एहतजाज हो रहा है, लेकिन चीन ने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक को ही धमकी दी है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5 हों या 10 ममालिक। अगर वो चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको भी इसका खमियाजा भुगतना होगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने दलाई लामा के मसले पर भी वाज़ेह कर दिया है कि अगले दलाई लामा को मुंतखब करने का चीन को कोई हक नहीं है और चीन बौद्ध मज़हब की रिवायात पर अपनी धौंस जमाना बंद करे। रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक खुद मुख्तार तिब्बत की मजहबी और समाजी शिनाख्त को तस्लीम करते हुए इस मसले के पुरअमन हल के लिए एक तजवीज़ को अपनी मंजूरी दी है। इस तजवीज़ में तिब्बत और तिब्बत के अवाम की हकीकी खुद मुख्तारी और 14वें दलाई लामा के ज़रिए आलमी अमन, इत्तेहाद और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए किए गए अहम इक़दामात की अहमियत को तस्लीम किया गया। सौती वोट से मंजूर की गई इस तजवीज़ में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आलमी मसाइल के पुरअमन हल के लिए अमरीकी कांग्रेस का मुश्तरका इजलास मुनक्किद करना या टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कांग्रेस के अरकान और दलाई लामा के दरमियान बातचीत सूदमंद साबित होगी। तजवीज़ में इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि तिब्बत के लोगों की आज़ादी, इंसानी हुकूक और उनकी मखसूस मजहबी, लिसानी, समाजी और सकाफती पहचान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी कांग्रेस तिब्बत के अवाम के साथ है। तजवीज़ में कहा गया है कि दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक में 60 लाख से ज़्यादा तिब्बती आबाद हैं। अमरीकी कांग्रेस के रुकन टेड लियो ने इस मौके पर कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि ऐवान ने तिब्बत की हकीकी खुद मुख्तारी और दलाई लामा की खिदमत को तस्लीम करने की तजवीज़ को इत्तेफाक राय से मंजूरी दी है। जुमेरात को ये खबर मंजर आम पर आई कि ऑस्ट्रेलिया की सलामती फोर्सेज ने 2003 से लेकर 2016 के दरमियान अफगानिस्तान में फौजी मुहिम के दौरान अफगानिस्तान के 39 लोगों को मुबैना तौर पर कत्ल किया था, जिसके सिलसिले में उनके खिलाफ मुजरिमाना मामले की जांच की जाएगी। उनके ओहदे वापस लिए जाएंगे और उन्हें मुमकिना इल्जामात का सामना भी करना पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स इस हवाले से रकम तराज है कि ऑस्ट्रेलिया के फौजी सरबराह एंगस कैंपबेल के जरिए मुबैना तौर से जंगी जराइम की सरकारी जांच रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। द मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक NSW कोर्ट ऑफ अपील के जज पॉल ब्रिटन की 4 साल की जांच में 23 वाकयात के ऐसे काबिले एतबार सबूत पाए गए हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा गैर जंगजू अफराद जिन लोगों को पकड़ लिया गया था या जख्मी कर दिया गया था, उन्हें स्पेशल फोर्सों के फौजियों के जरिए मार दिया गया। द मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऐसे 2 वाकयात भी हुए जिन्हें जालिमाना रवैये के जंगी जराइम के जुमरे में रखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जनरल कैंपबेल ने जुमेरात को यहाँ नामानिगारों की कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई सलामती फोर्स यानी ADF के पेशावर मयारों और उम्मीदों के लिए तौहीन आमेज और संगीन धोखाधड़ी का इंकिशाफ करती है। जम्मू और कश्मीर पुलिस और CRPF ने फौज के साथ मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई में जम्मू शहर के मुजाफात में भारी इसलाह से लैस 4 जंगजुओं को हलाक कर दिया। इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस का कहना है कि एक माल बरदार ट्रक में जाते हुए घेरे गए ये जंगजू कोई बड़ी वारदात अंजाम देने की ताक में थे। इसी दरमियान ये फोर्सेस के हत्थे चढ़ गए और इनके पास से हथियारों की सबसे बड़ी खेप भी बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि ये वाक़या जम्मू श्रीनगर शाहराह पर वाक़े नगरोटा कस्बा में बंटोल प्लाजा के करीब सुबह 5 बजे तब पेश आया कि जब श्रीनगर की जानिब जा रहे एक ट्रक को तलाशी के लिए रोका गया और उसमें सवार जंगजुओं ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। एक पुलिस अफसर ने कहा कि जैसे ही ट्रक को मामूल की तलाशी के लिए रोका गया,
اس کا ڈرائیور گاڑی سے باہر اترا اور اتر کر فرار ہو گیا، جبکہ گاڑی کے اندر موجود جنگجوؤں نے گولیاں چلانی شروع کر دیں، جس کے جواب میں موقع پر پولیس اہلکاروں نے گولیاں چلانے کے علاوہ اپنے اعلیٰ حکام کے ذریعے CRPF اور فوج کو بھی مدد کے لیے طلب کیا۔ علاقے میں کافی دیر تک گولیوں کا زبردست تبادلہ ہوا۔ اس دوران فورسز کی جانب سے بھی پھینکے گئے گولوں نے گاڑی کو تباہ کر دیا اور گولیاں چلانے والے خاموش ہو گئے۔ تلاشی کے دوران گاڑی میں سے 4 جنگجوؤں کی لاشیں اور ہتھیاروں کی بھاری کھیپ برآمد کی گئی۔ اس کارروائی کے اختتام پر جموں کشمیر پولیس کے انسپکٹر جنرل جموں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ فورسز کو یہ ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے جموں کشمیر میں بلدیاتی اداروں اور ضلع ترقیاتی کونسل یا DDC کے انتخابات کا بگل بجا ہے، انہیں یہ خبر مل رہی تھی کہ پاکستان کی جانب سے جنگجوؤں کو دراندازی کرانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سبھی حساس اور ممکنہ جگہوں پر پولیس اور دیگر فورسز چوکنا تھیں اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ IG جموں نے کہا کہ جنگجوؤں کی گولیاں لگنے سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، تاہم اسپتال میں ان دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مارے گئے جنگجوؤں کی شناخت ہونا باقی ہے، لیکن اندازہ ہے کہ یہ چاروں جیش محمد کے جنگجو تھے اور حال ہی میں دراندازی کر کے بھارت آئے تھے۔ اسی درمیان آرمی چیف MM نروانے نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی اہلکاروں کا ایک بے حد کامیاب آپریشن تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ زمین پر کام کر رہے سبھی سیکیورٹی اہلکاروں میں کتنی شاندار ہم آہنگی ہے۔ ہر مخالف اور دہشت گردوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ بھارتی سرحد کے اندر دراندازی کرنے کی حماقت کوئی بھی نہ کرے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش ہے آج کی بات۔ پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے علاقے گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی انتخابات کے انعقاد کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس نام نہاد الیکشن کے نتائج کے بعد پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی جوڑ توڑ کر کے حکومت بنانے میں شاید کامیاب ہو جائے، لیکن ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات نے اس کی معتبریت پر بہت سارے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ہزاروں افراد اسکرود اور گلگت کی سڑکوں پر اتر آئے اور انتخابات میں دھاندلی کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلائے اور گھنٹوں تک آمد رفت روکے رکھا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی گلگت بلتستان کے انتخابات کو ایک گھپلا قرار دیا ہے۔ ہندوستان کا ابتدا سے ہی موقف رہا کہ پاکستان کو گلگت بلتستان میں انتخابات کرانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کہ کسی بھی کوشش کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اور یہ یکسر ناقابل قبول ہے۔ اس طرح کی ڈرامے بازی سے اس خطے پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کو کسی طرح کا قانونی جواز حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خطہ ہندوستان کے جموں و کشمیر کے وسیع تر علاقے کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے گلگت بلتستان کے انتخابات پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ حکومت ہند پاکستان کے ذریعے ہندوستان کے ایک حصے میں غیر قانونی اور جبراً قبضے کے تحت طبعی تبدیلی لانے کی کوششوں کو پوری شدت کے ساتھ مسترد کرتی ہے، اور ہندوستان یہ واضح کرتا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر اور لداخ سمیت گلگت بلتستان ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہندوستان کا موقف ہے کہ انتخابات کرانے کے دکھاوے کی کارروائی سے پاکستان اپنے غیر قانونی قبضوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور گزشتہ 7 اشروں سے ان مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے استحصال اور ان کی آزادی کی خواہش کو مسترد کرنے کے اپنے اقدامات کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا ہے، اور پاکستان کو تمام غیر قانونی مقبوضہ علاقوں کو فوری طور پر خالی کر دینا چاہیے۔ ہندوستانی پارلیمان سن 1994 میں اس حوالے سے واضح طور پر ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کر چکی ہے۔ اس سال کے اوائل میں جب پاکستانی سپریم کورٹ نے گلگت بلتستان میں انتخابات کرانے کی اجازت دی تھی تو اس وقت بھی ہندوستان نے سخت اعتراض کیا تھا اور نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے اعتراض درج کرایا تھا۔ بھارت کا موقف ہے کہ کشمیر کے تمام علاقوں کے سلسلے میں پاکستانی حکومت یا پاکستانی عدالت کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात की सिर्फ हुकूमत हिंद ने ही मजम्मत नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने जिन अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं की इयानत और ज़ियाफ़त करने में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखी, वो भी हुकूमत पाकिस्तान के रवैये के ख़िलाफ़ हैं। हत्ता कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी तरह की तब्दीली के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तानी इक़दामात से खुश नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीर की सन 1947 से पहले की जो पोजीशन थी वो बहाल रहनी चाहिए। पाकिस्तानी सहाफ़ी, दानिश्वर और माहिरीन भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात कराने के हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में शोबे बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के चेयरमैन डॉक्टर नईम अहमद ने एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़े इलाका है, ये कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही कश्मीर के दावेदार हैं। हिंदुस्तान इस इलाके में किसी भी तब्दीली को कबूल नहीं करेगा। ये मुतनाज़े ख़ित्ते की हैसियत रखता है जिसमें कोई रद्द-व-बदल नहीं की जा सकती। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरिक नज़र आ रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भरपूर एहतजाज का ऐलान कर रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि तहरीक इंसाफ को हासिल होने वाली चंद सीटें धौंस, धांधली, मुस्लिम लीग नून से तोड़े गए उम्मीदवारों और सिलेक्टर्स की मरहून मिन्नत हैं। मरकज़ में मौजूद हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है और ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। इन इंतखाबात में धांधली का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पोस्टल बैलेट के लिए जो दरख्वास्तें मौसूल हुईं उनमें से बहुत सी दरख्वास्तें मरहुमीन और ऐसे लोगों के नाम से थीं जिन्हें कुछ नहीं पता था कि उनके नाम पर ऐसा कुछ हुआ है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और कॉलम नवीस हबीब अकरम ने लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज पर कुछ कहने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इलाका पाकिस्तान का फ़िलहाल बाकायदा सूबा नहीं है। चुनाचे ना तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इस इलाके से कोई मुंतखब होकर आता है और ना ही सीनेट में दीगर सूबों की तरह इसके नुमाइंदे मौजूद हैं। 2009 के गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर के तहत जो सूबाई किस्म के इख्तियारात और इदारे यहाँ दिए गए हैं उनकी हैसियत ज़िले जैसी भी नहीं और वो आम सी सहूलियात जो सूबों में ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके लिए इस्लामाबाद का मुँह देखते रहते हैं। यहाँ के बाशिंदों की मजबूरी है कि वो सूबाई हुकूक ना होने की वजह से विफाक में बरसर इख्तिदार पार्टी को वोट का तावान भरते हैं। यही तावान वो पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को भी देते रहे हैं, जो अब तहरीक इंसाफ ने अपनी बारी पर वसूल कर लिया है। फ़र्क अलबत्ता ये ज़रूर आया है कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार पार्टियों की तारीख़ में सबसे कम नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं। गोया एक तरह से शिकस्त का ही मुँह देखा है। पाकिस्तान के सियासी तज्ज़िया निगार हबीब अकरम का कहना है कि इन इंतखाबात में धांधली किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुई, बल्कि धांधली 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ हो रही है, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने बेशुमार वादों के बावजूद उनका हक नहीं दिया। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। असलम बेग से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भूटान की ज़रूरियात हमेशा भारत के लिए आला तरीन तरजीह रहेंगी। मुल्क भर में 50,000 से ज़्यादा आयुष्मान भारत सेहत और बहबूद मराकज़ कायम, जिनकी 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक रसाई है। कोरोना से सेहतयाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 93.60 हो गई है। भारत ने पाकिस्तान पर सरहद पार की दहशतगर्दी की एआनत के लिए नुक्ताचीनी की है और छठ का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके भूटान के हम मनसब लोटे शेरिंग ने आज मुश्तरका तौर पर ई-रुपए कार्ड जारी किया। गुज़श्ता साल अगस्त में वज़ीर आज़म के दौरा भूटान के दौरान इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले का मुश्तरका तौर से आगाज़ किया था। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के मुश्किल वक्त में भारत भूटान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भूटान की ज़रूरियात हमेशा भारत के लिए आला तरजीह रहेंगी। उन्होंने कहा कि रुपे कार्ड के दूसरे मरहले के आगाज़ से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा।
जनाब मोदी ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि इसरो की मदद से अगले साल भूटान के सैयारचे को खला में भेजने की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए भूटान से 4 खलाई इंजन दिसंबर में इसरो आ रहे हैं। जनाब शेरिंग ने आलमी वबा से निपटने में वज़ीर आज़म मोदी की कायदाना सलाहियतों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि भारत आलमी वबा से और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तैयारी में भारत की पेशरफ्त तमाम लोगों के लिए उम्मीद का जरिया है। रुपे कार्ड के दूसरे मरहले से अब भूटान के कार्ड रखने वाले लोगों को भारत में रुपे नेटवर्क तक रसाई हासिल करने का मौका मिलेगा। भारत ने 50,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत व तंदुरुस्ती मराकज में कामकाज शुरू करके एक अहम संग मील तय किया है। इससे मुल्क में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए कम खर्च वाली हिफ्ज़ान सेहत खिदमात फराहम होंगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को कोविड-19 आलमी वबा से दरपेश चैलेंजों के बावजूद सेहत और तंदुरुस्ती मराकज़ में कामकाज शुरू करने की उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये मरकज़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की मुश्तरका कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। कल शाम भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि स्टील, मालियाती टेक्नोलॉजी और डिजिटल डोमेन ऐसे सेक्टर हैं जहां दोनों ममालिक का अच्छा इश्तिराक और ताउन है, लेकिन इन शोबों में और ज़्यादा इम्कानात हैं। जनाब मोदी ने लग्जमबर्ग के अपने हम मनसब को कोविड आलमी वबा के मुश्किल वक्त में उनकी उम्दा क़यादत के लिए सराहा। भारत में कोविड-19 के 45,882 नए मरीजों के साथ ही कुल केसेस की तादाद 90,04,366 तक पहुंच गई है। सेहत की वजारत ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 584 ताज़ा अमवात हुई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1,32,162 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है, जिसके साथ ही उन मरीजों की तादाद 84,28,410 हो गई है जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। सेहतयाबी की शरह 93.60% हो गई है। मुल्क में कोविड-19 के सेहतयाब मरीजों की तादाद 4,43,794 हो गई है। भारत ने सरहद पार की दहशतगर्दी की मदद और एआनत करने पर पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कल शाम नामनिगारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की खातिर साल 2003 की जंगबंदी मुफाहमत पर अमल पैरा रहने और ज़ब्त तहम्मुल से काम लेने की बार बार की अपीलों के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेज फायरिंग करके दरअंदाजों को ढाल फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर तैनात पाकिस्तानी फौजियों की मदद के बगैर इस तरह की सरगर्मियां मुमकिन नहीं हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत ने सरहद पार से दहशतगर्दों की चोरी छुपे भारत में दाखिल होने की पाकिस्तान की मदद जारी रहने पर सख्त एहतजाज भी किया। करतारपुर साहब गुरुद्वारे के बारे में एक सवाल पर जनाब श्रीवास्तव ने बताया कि यह फैसला किया गया है कि गुरु नानक की 551वीं जयंती के मौके पर भारत से सिखों का एक जत्था इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दौरे पर रहेगा। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक 12वें मुज़ाकरात का कल वर्चुअल तरीके से इनेकाद किया गया। ये मुज़ाकरात भारत यूरोपीय यूनियन अहम शिराकतदारी के इस अहम उन्सुर पर करीबी ताउन और तालमेल जारी रखने का एक मौका है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की लड़ाई में एक दूसरे की मदद करने का अज़्म किया हुआ है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी के लिए दरपर्दा दहशतगर्दों के इस्तेमाल समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है। भारत ने यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है और मुतासरीन के कुनबों के तई ताज़ियत का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन ने 26/11 मुंबई, पठानकोट और पुलवामा समेत भारत में दहशतगर्दाना हमलों की अपनी मजम्मत को दोहराया और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के अवाम और हुकूमत के लिए अपनी मदद के मौक़िफ़ को दोहराया। भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक जामे और देरपा तरीके से दहशतगर्दी से लड़ने के लिए बैनुल अक़वामी ताआवुन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताआवुन से गुज़श्ता चंद बरस के दौरान खातिर ख़्वाह फ़ायदे हासिल हुए हैं। दिफा और तिजारती बहरी जहाज़ों की तैयारी से मुताल्लिक़ वर्चुअल तरीके से मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए दिफाई प्रोडक्शन के सेक्रेटरी राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड के बांग्लादेश के साथ करीबी ताआवुन से दोनों मुल्कों के लिए इजाफी फ़ायदे हुए हैं।
इस इजलास का एहतमाम ढाका में भारतीय हाई कमीशन और फिक्की ने कल किया था। इससे तैयारी और देखरेख से मुताल्लिक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक साझेदारी हासिल हो सकेगी। उन्होंने ताउन और इश्तिराक के इम्कानात पर रोशनी डालते हुए कहा कि भारतीय दिफाई सनतें फ़ज़ाई, ज़मीनी, समंदरी और खलाई शोबों में निज़ाम और ज़ैली निज़ाम के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म फराहम कर सकती हैं। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दुराई स्वामी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान अपनी अपनी सलाहियतों को मुश्तरका फ़ायदों के लिए बरूएकार लाने की बेपनाह गुंजाइश है। बांग्लादेश के जहाज़रानी के वज़ीर खालिद महमूद चौधरी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह की दावत पर ग्रुप 20 रहनुमाओं की 15वें इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाला इजलास शनिचर और इतवार को वर्चुअल तरीके से होगा और इसकी बुनियादी ख्याल होगा तमाम लोगों के लिए 21वीं सदी के इम्कानात को बरूएकार लाना। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि 2020 के दौरान ये ग्रुप 20 रहनुमाओं की दूसरी मीटिंग होगी। इसमें ख़ास तौर से जिस मामले पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी वह है कोविड-19 से शमूलियत वाली और पायदार बहाली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज छठ पूजा का त्यौहार रिवायती धूमधाम और मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन अक़ीदतमंद आज शाम गुरूब होते हुए सूरज के सामने पूजा अर्चना करेंगे। 4 रोज़ा तकरीबात का कल सुबह इख्तिताम होगा जब चढ़ते सूरज की पूजा अर्चना की जाएगी। छठ त्यौहार सूरज देवता और उनकी बीवी ऊषा के एहतराम में मनाया जाता है। तकरीबात के दौरान अक़ीदतमंद कुर्रे अर्ज़ पर हयात बरकरार रखने के लिए सूरज देवता की हिद्दत और तवानाई के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने छठ के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर ने आवाम से कहा है कि वो फितरत और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करें और कोविड-19 आलमी वबा के तनाज़ुर में ज़रूरी इक़दामात का ध्यान रखें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने छठ के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा है कि यह फितरत की फैयाजियों को मनाने का त्यौहार है। उन्होंने दुआ की कि सूरज देवता अपनी तवानाई से मुल्क के अवाम को सेहत और खुशहाली से मालामाल करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी छठ के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भूटान की ज़रूरियात हमेशा भारत के लिए आला तरीन तरजीह रहेंगी। मुल्क भर में 50,000 से ज़्यादा आयुष्मान भारत सेहत और बहबूद मराकज़ कायम, जिनकी 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक रसाई है। कोरोना से सेहतियाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 93.6% हो गई है, 6-0 हो गई है। भारत ने पाकिस्तान पर सरहद पार की दहशतगर्दी की इआनत के लिए नुक्ताचीनी की है और छठ का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पज़ीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।